اسرائیلی فوج کی جبالیہ نصیرت کیمپوں اور رفح پر بمباری، مزید 56 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں پولیس کی گاڑی پر بھی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پولیس کے 7 اہلکاروں سمیت 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ جاں بحق یا زخمی ہو رہا ہے۔ غزہ کے بچوں کو بچانے کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے۔ سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع میجر جنرل انجینئر طلال بن عبداللہ العتیبی پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان پہنچنے پر سعودی معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ العتیبی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع کی آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے ملاقات بھی شیڈول ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی و اقتصادی ترقی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ پاکستان کے دورے سے بہت خوشی ہوئی۔ آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کی طرف پیش رفت ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ SIFC پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان سرمایہ کاری بڑھانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں جاری۔ ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر خزانہ نے معاشی ٹیم کے ہمراہ IMF ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز میں بھی شرکت کی۔ امریکہ کی معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی اقتصادی اصلاحات کی تعریف۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ میتھیو ملر نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2024 جاری کر دی۔ رپورٹ میں پاکستان کی معیشت میں بہتری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق IMF کا ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ رواں سال پاکستان میں معاشی شرح نمو 2 اور اگلے سال 3.5% تک جانے کی توقع ہے۔ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو توشہ کی گاڑیوں سے متعلق ریفرنس سے بری کرنے کی استدعا کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک بھر میں اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے صحیح نتائج پر پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ زاہد حامد خود استعفیٰ دینے پر تیار تھے، لیکن اس وقت تک ذہن بن چکا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپریشن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اور ایجنسیز کی رائے تھی کہ آپریشن کے نتیجے میں اموات ہوں گی۔
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सस्ती रोटी पर अमल दरामद करा कर दिखाऊंगा, अगर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PDM-2 का एक और तजुर्बा किया जा रहा है, कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। PDM-1 का नतीजा सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताते हैं कि दुनिया पूर्व वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां हरकत में आ गई हैं। चौधरी शाहिद इकबाल चीमा ने विजिट के दौरान मुख्तलिफ होटलों की रोटी के वजन और मयार को चेक किया। रिपोर्ट कर रहे हैं रिपोर्टर जकी शाह। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां हरकत में आ गई हैं। चौधरी शाहिद इकबाल चीमा ने विजिट के दौरान मुख्तलिफ होटलों पर रोटी के वजन और मयार को चेक किया। रिपोर्ट करेंगे रिपोर्टर जकी शाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां इन एक्शन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैफुल्लाह जवेद की हिदायत पर मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। तहसील भर के मुख्तलिफ हिस्सों में दौरे के दौरान शाहिद इकबाल चीमा ने मुख्तलिफ होटल्स को चेक किया और रोटी के वजन और म्यार को भी चेक किया। रोटी के वजन कम होने और ज़्यादा कीमत पर वसूली पर मुख्तलिफ होटल मालकान को भारी जुर्माने भी ऐद किए। इस मौके पर चौधरी शाहिद इकबाल चीमा का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। होटल मालकान फौरी तौर पर रोटी की कीमत को हुकूमती हिदायत के मुताबिक आवाम को फराहमी को यकीनी बनाएं, वरना कानूनी कार्रवाई हरकत में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ जकी शाह, कोहिनूर, दुनिया। ओकाड़ा के इलाके मंडी अहमदाबाद कलहर रोड पर मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे का तसादुम हुआ। हादसे में नौजवान जाँ बहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त जमान के नाम से हुई है। रिक्शा ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। ओकाड़ा में डीजी फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। 1200 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया गया। गाड़ी को अमली मोती पाकपतन रोड पर चेक किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान भारी मिकदार में मुर्दा मुर्गियां बरामद की गईं। मुर्दा मुर्गियां मार्केट में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। सप्लायर्स को मौका से गिरफ्तार करके थाना सदर में FIR दर्ज करवा दी गई। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई का कारोबार करने वाले इंसानी जानों के दुश्मन हैं। उनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में सीनियर सहाफी मोहम्मद शफीक की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के चेयरमैन समेत सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में निजी चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद शफीक की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई गई। सीनियर सहाफी मोहम्मद शफीक अहमद निहायत मेहनती और अपने पेशे से मुख्तलिफ रहने वाले इंसान हैं, जो हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दोस्तों के लिए हाजिर खिदमत रहते हैं। आज इनकी सालगिरह के हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खानेवाल के तमाम सीनियर और नौजवान सहाफियों ने शिरकत की। खानेवाल मोटर डीलर एसोसिएशन के सदर राव फरमान समेत खानेवाल के दोस्तों और शहरियों ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। तकरीब का एहतमाम बानी और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल अब्दुल लतीफ अनवर, जनरल सेक्रेटरी फ्रेंड मीडिया ग्रुप मलिक उस्मान और सदर फ्रेंड मीडिया ग्रुप चौधरी तनवीर अहमद ने किया। तकरीब में शरीक सहाफियों में आमिर अयूब पराचा, अब्दुल वहीद इमराना, सैयद अजबर शाह, कैसर चौधरी नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज, मलिक इशफाक प्रिंस, मुमताज हुसैन, आमिर नसीर, राना नासिर, मुमताज बली, मिर्जा अफजाल, आफ्ताब कुरैशी, दिता राव, यूनिस आजाद राव, अंजुम, अल्ताफ आरजू राव, इफ्तिखार वकार लोधी ने सीनियर सहाफी मोहम्मद शफीक के हमरा सालगिरह का केक काटा और उम्र दराजी की दुआ की। कसूर सब डिवीजन बहादुरपुरा के SD की मुजरिमाना गफलत नौजवान की जान ले गई। गरीब मेहनत कश को बगैर हिफाजती सामान बगैर परमिट हाई ट्रांसमिशन लाइन पर चढ़ा दिया। बहादुरपुरा सब डिवीजन का अमला खुद तमाशा देखता रहा। प्राइवेट शख्स को तारों पर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया। लियाकत बस्ती खुशीवाला का रिहायशी और 4 बच्चों का बाप था। हलाकत की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। बहादुरपुरा सब डिवीजन में प्राइवेट शख्स की हलाकत का ये दूसरा वाकया है।
शहरियों ने इस मुजरिमाना गफलत पर एसडीओ समेत जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कसूर थाना ए डिवीजन पुलिस की एसएचओ मोहम्मद नसीब की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। इंचार्ज चौकी पुराना लारी अड्डा ने 15 लाख रुपए की चोरी शुदा मशीनरी बरामद कर ली है। शाह इनायत कॉलोनी के रिहायशी तारिक महमूद के कारखाने से नामालूम मुलजिम मशीनरी चोरी करके ले गए थे। डीएसपी सिटी की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज चौकी फाहद रजा ने मुसलसल मेहनत के बाद नामालूम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त शाहिद के नाम से हुई। कब्जे से चोरी शुदा मशीनरी बरामद कर ली गई। थाना ए डिवीजन पुलिस ने मुलजिम को बाजाब्ता हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। रेनाला खुर्द में थाना चूचक की हुदूद में बहनोई ने नौजवान को कत्ल कर दिया। मौजा इस्लामपुरा में अरशद अपनी बीवी पर तशद्दुद कर रहा था। बहन को छुड़वाने के लिए भाई आया तो बहनोई ने कुल्हाड़ी के वार करके बीवी और उसके भाई को शदीद जख्मी कर दिया। उस्मान जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर दम तोड़ गया। जख्मी खातून की शनाख्त साइमा के नाम से हुई है। भेरा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रकम अदायगी सेंटर पर भगदड़ मच गई। खातून ने भेरा मलकवाल रोड को तमाम ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक के लाइनें लग गईं। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज सेंटर का रिटेलर सेंटर से गायब हो गया। मुस्तैक खातून का कहना था एक ही सेंटर होने से खातून को शदीद मुश्किलात का सामना है। 2 माह से पैसे निकलवाने आ रहे हैं। मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। तमाम अदायगियां बैंक के जरिए की जाए। खातून ने आला हुकाम से मुतालिबा कर दिया। उकाड़ा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। दौरान ऑपरेशन 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। कब्जे से 6 किलो से जायद चर्च बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपीओ उकाड़ा का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। रोटी और नान की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर इन एक्शन है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने जिला भर में 2 दिन के दौरान रोटी और नान के मुकर्रर करदा नए निर्ख पर अमल दरामद के सिलसिले में 335 मकामात की इंस्पेक्शन की। इस दौरान 70 अफराद को ओवरचार्जिंग करते हुए पाया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफराद पर मौका पर ही 1,36,000 रुपए जुर्माना आयद किया। 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक दुकान सरबमहर की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जिला भर में मुकर्रर किए गए रोटी और नान के नर्ख के मुताबिक रोटी और नान की फरोख्त को यकीनी बनाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर इन एक्शन जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उनकी निगरानी में मुतहर्रिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने जिला भर में 15-16 अप्रैल के दौरान रोटी और नान के मुकर्रर करदा नए नर्ख पर अमल दरामद के सिलसिले में 335 मकामात पर जाकर चेकिंग की। इस दौरान 70 अफराद को ओवर चार्जिंग करते हुए पाया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफराद पर मौके पर ही 1,36,000 रुपये जुर्माना आयद किया। 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एक दुकान सील की गई। वाज़ह है कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर गंदम की कीमतों में कमी के बायस 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। यह इकामत हुक्म आसानी नाफिजुल अमल रहेगा। यह इकामत हुक्म आसानी नाफिजुल अमल होंगे। इन नान और रोटी वालों ने कहा कि हम हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। हुकूमती रेट पर रोटी फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो रेट उन्होंने सादा नान के निकाले हैं 120 ग्राम पका हुआ नान 20 रुपये का, उस पर हमने अमल दरामद शुरू कर दिया है। और सादा नान अब हम 120 ग्राम का पका हुआ बगैर घी के 20 रुपये का दे रहे हैं। हम रोटी 15 रुपये की दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पूरा उतर रहे हैं इंशाल्लाह। और जो साथी आ जाते हैं जिनके पास नहीं होते उन्हें कम भी दे देते हैं और बिल्कुल भी नहीं देते। मंडी बहाउद्दीन में बेटे ने वालिद के दोस्त के साथ मिलकर वालिद को कत्ल कर दिया। बेटे ने बाप को फंदा लगाकर कत्ल किया और लाश खेत में दफना दी। मकतूल की लाश थाना गोजरा के इलाके से बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि बेटे ने वालिद को वालिदा की वफात का कसूरवार करार देकर कत्ल किया। लाश को गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर बरामद किया गया।
مقتول رحمت خان اٹلی سے آیا تھا، 4 روز قبل لاپتہ ہو گیا تھا۔ بیٹے نے تھانہ سٹی میں والد کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ مقتول کے دوست سے تفتیش کے دوران اس نے قتل کا اعتراف کیا۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، منڈی بہاؤالدین میں بیٹے نے والد کے دوست کے ساتھ مل کر والد کو قتل کر دیا۔ بیٹے نے باپ کو پھندا لگا کر قتل کیا اور لاش کھیت میں دفنا دی تھی۔ مقتول کی لاش تھانہ گوجرا کے علاقے سے برآمد ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ بیٹے نے والد کو والدہ کی وفات کا قصوروار قرار دے کر قتل کیا ہے۔ لاش گرفتار ملزم کی نشاندہی پر برآمد کی گئی۔ مقتول رحمت خان اٹلی سے آیا تھا، 4 روز قبل لاپتہ ہو گیا تھا۔ بیٹے نے تھانہ سٹی میں والد کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ مقتول کے دوست سے تفتیش کے دوران اس نے قتل کا اعتراف کیا۔ جنگ انتظامیہ حفظان صحت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی زیر نگرانی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، 80 لیٹر ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس کو برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ فیصل آباد روڈ اڈا چمڑا والی پر کولڈ ڈرنکس کی ایجنسی میں ریڈ کے دوران زائد المعیاد کولڈ ڈرنکس برآمد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ شہریوں کو صحت مند اور محفوظ خوراک کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں سرمد حسین نے مہنگے داموں روٹی فروخت کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف جرمانے کر کے چند افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے۔ چیچا وطنی میں اے ایس پی معاذ الرحمان کی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایس ایچ او اور محمد اشرف نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش سجاد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اور ناظرین، ریاست کی مضبوطی میں بھی میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اپنی تعیناتی کے دوران جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ اے ایس پی چیچا وطنی حافظ معاذ الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ صحافیوں اور عوام کے تعاون کے بغیر جرائم کا خاتمہ ناممکن ہے۔ انشاءاللہ فوری اور بلا تفریق جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ میرا مشن ہے، میں اپنے سرکل کو کرپشن فری بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کرپشن جیسے ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وفد میں صدر چیچا وطنی پریس کلب چودھری فیاض حسن کمبوہ، صدر سٹی پریس کلب رانا شہباز اختر، بابائے صحافت رانا عبداللطیف، سینئر صحافی میاں محمد رمضان موجود تھے۔ ملاقات میں سینئر صحافی طاہر جواد ملک، حاجی غلام مرتضیٰ، سینئر صحافی ملک اسد عباس بھی شریک تھے۔ ایڈیشنل سیکریٹری لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شاہزیب حسنین نے یونیسیف کے اشتراک سے تعلیم پروجیکٹ کے تحت قائم کردہ نان فارمل اسکولوں میں پیکج اے کے مڈ ٹرم امتحانات کا معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریچر طاہرہ رفیق بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری لٹریسی نے طلباء و طالبات سے امتحانات سے متعلق گفتگو کی اور نان فارمل اسکولوں کے اساتذہ کو ضروری ہدایات دی۔ انہوں نے کہا کہ فروغ علم کے لیے خصوص محنت اور بھرپور لگن کامیابی کی ضمانت ہیں اور اپنی ذات کو پس پشت رکھ کر ہی بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بعد ازاں ایڈیشنل سیکریٹری لٹریسی نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی مظفر گڑھ کے دفتر میں شجر کاری مہم کے سلسلے میں پودا لگایا۔ کمبر شہداد کوٹ کے علاقے کبو سعید خان میں سیاہ کاری کے الزام میں ملزمان نے فائرنگ کر کے 20 سالہ ہما بروہی اور
25 साला सनाउल्लाह संदीलो को कत्ल कर दिया। वाक़ये के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। थाना कबू सईद खान की पुलिस ने मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी। SSP कंबर शहदाद कोट मोहम्मद कलीम मलिक ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी हैं। पास्को सेंटर सालेपट के मकीनों के लिए परेशानी का घर बन गया है। आदाद शुमार के मुताबिक सालेपट पास्को सेंटर का गंदम की वसूली का मजमूई हदफ 22,000 है, जिसमें से पास्को सेंटर का इजलास गुलाम रसूल सरकी अपने मनपसंद अफराद को तरजीह दे रहा है। बाकी आम किसानों को खाली सेंटर के चक्कर लगवाए जाती हैं, जिससे किसानों पर भारी कीमत जो गंदम पर लगाए गए हैं उनका नुकसान हो रहा है। और जाम साहब में शहरी गुलाम मुस्तफा मरी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। मुजाहिरे में अब्दुल जब्बार मरी, रियाज अहमद मरी, बख्श अली मरी, सुल्तान मरी और शहीद गुलाम मुस्तफा के बच्चे शकूर मरी, वाहिद मरी, शाहजेब मरी शरीक थे। उनका कहना था कि कातिल इमाम बख्श रिंद और शादी खान रिंद सरेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने कातिलों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। IG सिंध फौरी नोटिस लें वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जैकबाबाद और मजाफाती इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बारिश ने जल थल एक कर दिया। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इंतजामिया पानी की निकासी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम न कर सकी। बारिश से रोड, गलियां, तालाब के मनाजिर पेश करने लगे। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 6 बसें कराची से रवाना कर दी गई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मैडम फरियाल तालपुर की जानिब से और MNAs मीर मुनव्वर अली खान तालपुर, पीर आफ्ताब हुसैन शाह जलानी, सूबाई वजीर सैयद जुल्फिकार अली शाह, MPA हरिराम किशोरी लाल की कोशिश से फैज में मीरपुर खास शहर के लिए पीपल्स बस सर्विस 20 अप्रैल से चलेगी। आज कराची से मीरपुर खास के लिए 6 पीपल्स बस मीरपुर खास रवाना कर दी गई। SSP घोटकी डॉक्टर सैयद सुमैर नूर चन्ना की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। SHO थाना ए सेक्शन सईद अहमद जमानी का डाकुओं से मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि SSP घोटकी डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद सोमरू से। जी अब्दुल वहीद बताइएगा। जी बिल्कुल, SFC घोट की जनाब डॉक्टर सुमीर नूर की खसूसी हिदायत पे जराइम पेशा अनसर के खिलाफ गिरफ्तार जारी है। SHO थाना स्टेशन घोट की सईद अहमद जमानी ने स्टाफ डाकू के साथ मुकाबला, दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार, जबकि दो नामालूम मुलजिम फरार हो गए। पुलिस मुकाबला मिरानी बाईपास घोटकी के करीब हुआ। मुलजमान मिरानी बाईपास पर वारदात के इरादे से खड़े थे। पुलिस को देखते ही मुलजमान फरार होने में लगे तो पुलिस ने डाकू का गहरा तंग कर लिया। मुलजमान ने पुलिस को अपनी जानिब आता हुआ देखा तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाब दी, खुद इख्तार में जवाबी फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी होकर गिर गया, जिससे पुलिस ने एक पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के दो नामालूम साथी मौके से फरार हो गए। जख्मी मुलजिम की जान मोहन भयो से हुई है। जख्मी मुलजमान को तिबी इमदाद के लिए घोट अस्पताल रवाना कर दिया गया है। दूसरी जानिब जख्मी मुलजिम के खिलाफ थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद सोमरू, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कलात में तवील सर्दी के खात्मे के बाद मौसम बहार की आमद, फूल निकलने से शहर की फिजा मुख्तलिफ खुशबुओं से मुअत्तर हो गई। शहरियों ने खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बागात का रुख कर लिया। दूसरी जानिब जमींदार तबका शदीद परेशानी के आलम में है। उनका कहना है कि तवील लोड शेडिंग ने बागात फसलों को तबाह कर दिया है। ज़रई फीडर्स पर सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम की जाती है, जो जुल्म की इंतहा है।
कलात में तवील सर्दी के खात्मे के बाद मौसम बहार की आमद, फूल निकलने से शहर की फिजा मुख्तलिफ खुशबुओं से मुअत्तर हो गई। शहरियों ने खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बागात का रुख कर लिया। दूसरी जानिब जमींदार तबका शदीद परेशानी के आलम में है। उनका कहना है कि तवील लोड शेडिंग ने बागात फसलों को तबाह कर दिया। ज़रूरी फीडर्स पर सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम की जाती है, जो जुल्म की इंतहा है। शेर व शायरी इल्म व अदब में बहुत अहमियत का हामिल है। इल्म व अदब की तरक्की का राज शायरों की शेरी में बहुत इन्हिसार रखता है, मगर हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से बहुत से शायर अपने इल्म अदब से महरूम हो जाते हैं। आइए मजीद देखते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट। शायर और शायरी इल्म व अदब में बहुत अहमियत का हामिल है। इल्म व अदब की तरक्की का राज शायरों की शायरी में बहुत इन्हिसार रखता है। शायरों के महफिल को तरजीह ना देना शायरों के साथ नाइंसाफी है। जाहिर है शायर जब कोई महफिल या बज़्म अदब का कोई जलसा या महफिल सजाते हैं, उसमें शायर अपने इल्म की अहमियत को उजागर करने के लिए शेर सुनाते हैं। इससे शायरों में बहुत जज्बा पैदा होता है और दूसरों के शायरों के शायरी सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी तरह हर शायरों के साथ हुकूमती ताउन की जाए तो बहुत से शायर आश्कार हो जाएंगे। हक़ाइक़ जो छुपाते हैं फसाने छाप देते हैं, किसी ऐसे सहाफ़ी पे किसी अखबार पे लिखूं, कभी ये सोचता हूँ मैं किसी बीमार पे लिखूं। जिन्हें छत का नहीं साया, जिन्हें तन पे नहीं कपड़ा, गरीबे शहर के मैं साहबे सरकार पे लिखूं। नए नए मुस्तकबिल के मेमारू में शायर और शायरी का जज्बा पैदा होगा और इनमें इल्म व अदब सीखने का तरीका पैदा होगा और आला तालीम हासिल करने का जज्बा होगा। शायर और शायरी के जरिए इलाके के मसाइल को उजागर करने का भी मौका मिलेगा। हुकूमत बलुस्तान की जानिब से हमारे नसीराबाद डिवीज़न को इस बेल्ट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। अदबियात के हवाले से, मुशायरों के हवाले से कि हर साल करोड़ों रुपए बजट मुख्तस किया जाता है अदबी इदारों की, ये जो निजी अदबी इदारे तंजीमें उनकी सरपरस्ती के लिए, हौसला अफजाई के लिए, शुरा के फलाह बहबूद के लिए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये बजट हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये मकामी शायर हुकूमती सरपरस्ती हासिल न होने की वजह से ये लोग शदीद मुश्किलात से दो चार होते हैं। महकमा सकाफत जो फन और अदब और शायरों के लिए बजट तो रिलीज की जाती है, मगर जो शायर फन और अशार के जरिए मुल्क के महरूमियों के बारे में आगाही देने में कामयाब होते हैं, इन्हें हुकूमती सरपरस्ती से मजीद बेहतर से बेहतर शायर पैदा करने में कामयाब। झुड्डू शहर में पीने का पानी नापैद होने से पानी का संगीन बहरान पैदा हो गया है। सख्त गर्मी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि डाझीरो मोरी के करीब 62 अफराद की जानिब से ट्रैक्टर की मदद से जमड़ाओ नहर में बंद बांध कर झुड्डू की जानिब पानी की फराहमी को रोक दिया गया है। बासर सियासी शख्सियात की जानिब से जमड़ाओ कैनाल में पानी की फराहमी में रुकावट पैदा करने वालों की वजह झुड्डू समेत दीगर शहरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पानी की बंदिश की वजह से झुड्डू वाटर सप्लाई इंतजामिया ने झुड्डू शहर और मुजाफाती इलाकों में पानी की फराहमी का दौरानिया भी कम कर दिया है, जिससे शहर के बेशतर इलाकों में मीर गुलाम हुसैन कॉलोनी, ईदल मोहल्ला, रहीम आबाद, कायम खानी मोहल्ला, मेमन मोहल्ला, हाशिम कॉलोनी पीने के पानी से मुकम्मल तौर पर महरूम है।
मुजाहिरीन ने कमिश्नर मीरपुर खास से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत ज़िला स्पोर्ट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कमेटी यूनुस पठान समेत मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि जिला घोटकी के नौजवानों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, ताहम जरूरत इस अमर की है कि नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए उनको खेल और तफरीह के साजगार मौके फराहम किए जाएं ताकि उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा हो सके। उन्होंने कहा कि सेहतमंद जिंदगी के लिए खेलों के मुकाबले लाजमी है ताकि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों की जानिब मबजूल होने का मौका न मिल सके। उन्होंने तमाम मुतालिका अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि 8वीं डिस्ट्रिक्ट गेम्स के तहत मई के आगाज में ही खेलों के मुकाबले मुनाकिद करवाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं को की जाने वाली असलहा की बड़ी खेप पकड़ी गई। एएसपी बंगल खान भुट्टी के मुताबिक सिंध पंजाब बॉर्डर पर दावाला चेक पोस्ट पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। ह्यूमन इंफॉर्मेशन पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही थी कि पेशावर से आने वाली गाड़ी में असलहा की बड़ी खेप बरामद हुई। उनका मजीद कहना था कि पकड़े गए असलहा में 22 क्लाशनकोव, 65 पिस्तौल और हजारों गोलियां शामिल हैं। पेशावर रोड कोहाट से ताल्लुक रखने वाले 5 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। सूबाई वजीर हेल्थ मलिक मखदूम यार खान का करम पुल, कासे कला पुल और नई सब्जी मंडी रोड का दौरा। कमिश्नर बन्नू परवेज सब्तखेल और डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने बारिश के बायस होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर मलिक पख्तून यार खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया और अवामी मुश्किलात से आगाह किया, जिस पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी के साथ काम शुरू करवाने की हिदायत की। सूबाई वजीर मलिक पख्तून यार खान ने NHA और महकमा CNW को काम जारी करने की हिदायत देते हुए फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। समाजी रहनुमा नवाज जितोई ने प्रेस क्लब तलहार में के वार्ड 156 में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था टाउन कमेटी तलहार से मुंसलिक शहर के वार्ड्स में अरसे दराज से पानी का अहम मसला हल न होने से शहरी परेशान है। गुज़श्ता 8 माह से शहरी पीने के पानी से महरूम है। निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तलहार के शहरियों की टाउन कमेटी के चेयरमैन से तवक्कुआत वाबस्ता है। शहरियों को ताहाल कोई रिलीफ नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से आज़रबाईजान के सफीर खिजर फरहादोफ ने मुलाकात की, जिसमें दोतरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़रबाईजान के सफीर ने आज़रबाईजान की स्पीकर की जानिब से सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर तहनीयती पैगाम पहुंचाया और आज़रबाईजान के दौरे की दावत दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान एक दूसरे के साथ मजहब, सकाफत, तारीख और भाईचारे के लाजवाल रिश्ते में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम आज़रबाईजान के अवाम से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर हमेशा आज़रबाईजान का साथ दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी सतह पर राबतों का फरोग जरूरी है। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स के जरिए दोनों ममालिक के पार्लिमान एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करने पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया पर मुश्तमिल अफ्रीकी पार्लिमानी ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। आज़रबाईजान के सफीर खिजर फरहारूफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के आज़रबाईजान से मुतालिक तासुरात को सराहा। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान को एक मुखलिस दोस्त और बरादर मुल्क तस्वुर करता है। आज़रबाईजान को पाकिस्तान के साथ अपने दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर फख्र है। उन्होंने कहा कि मसला नोगोरो-कराबाख पर पाकिस्तान की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि
थाना मरोड़ में नए तैनात एसएचओ वकास सलीम की अवामी प्रेस क्लब मरोड़ के सहाफियों से तारुफी मीटिंग इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एसएचओ थाना मरोड़ वकास सलीम का कहना था, मेरी तैनाती के दौरान इंशाल्लाह इलाके में अमन अमान बरकरार रहेगा। मेरे दरवाजे अवामी खिदमत के लिए 24 घंटे खुले हैं। अवाम को चाहिए कि किसी भी मसले के हल के लिए पुलिस से खुद मुलाकात करें। अवाम के जान माल का तहफ्फुज पुलिस की अवलीन तरजीह है। एसएचओ थाना मरोड़ वकास सलीम ने कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम वकास सलीम है और मैं 10 अप्रैल को बतौर एसएचओ थाना मरोड़ तैनात हूँ। सबसे पहले मैं मशहूर हूँ अवामी प्रेस क्लब के उहदेदारान और मेंबरान का कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर थाना पर आए और मुझे अपने तवज्जुह से जनरल पब्लिक को कुछ मैसेज डिलीवर करने का मौका दिया। तो दो चीजें हैं। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन के मामलात हैं। किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन है उसको उसमें मेरिट इंश्योर करने के लिए हम हमा वक्त हाजिर हैं। दूसरी चीज है सोशल क्राइम। अगर कहीं ड्रग पेडलिंग हो रही है, कहीं पे जुआ हुआ है, तो आप हमें जनरल पब्लिक हमें गाइड करे। मेरा नंबर अवेलेबल है, मेरा ऑफिस अवेलेबल है, हमें बताए निशानदेही करे, उस पर भी इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि अवाम के लिए मैं हमा वक्त हाजिर हूँ। आपको किसी किस्म के टाउट की, किसी किस्म के सिफारिश कल्चर की, किसी किस्म की रिश्वत की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास तशरीफ लाएं, आपको चाय का कप भी पिलाया जाएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। इसके लिए आप चट्टी दलाल और टाउटों पर बिल्कुल इक्तफा ना करें। और अगर वो आपको कहते हैं कि हम आपका काम बआसानी करवा सकते हैं तो उनको बिल्कुल इनकार करें और उनकी किसी बात पर अमल दरामद ना करें। बल्कि आप मेरे पास डायरेक्ट तशरीफ लाएं। थाना पर मैं अवेलेबल हूँ। अगर मैं थाना पर नहीं हूँ, किसी मौका पर गया हूँ, तो आप मेरा फोन नंबर लें, मुझसे कॉन्टेक्ट करें। रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज 4 में गरीब घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार मौत मुअम्मा बन गई। मालकिन का कहना है कि 16 साल आमना ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। आमना को कत्ल करके वकवा को खुदकुशी का रंग दिया गया। लवाहकीन ने इल्जाम लगा दिया। बच्ची की लाश अभी कार चौक में रखी गई। गरीब बच्ची का ताल्लुक ननकाना साहब से बताया जाता है। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर असगर अली भट्टी से। जी असगर अली, बताइएगा क्या मुआजरा है। इफ्तिखार अली भट्टी के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि गरीब बच्ची का ताल्लुक ननकाना साहब से बताया जा रहा है। मजीद जानते हैं इफ्तिखार अली भट्टी से। जी इफ्तिखार अली भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी रावलपिंडी में बहरिया टाउन में वाकया पेश आया है। ये बच्ची की जो पुरस्कार तरीके से जो लाश थी वो किचन के अंदर लटकी हुई पाई गई थी, जिसके बाद जो घरेलू मुलाजमात की बच्ची जिस घर में काम करती है, उनके घर वालों का कहना है कि बच्ची ने खुदकुशी की है। और दूसरी तरफ बच्ची के लवाकिन है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बच्ची को कत्ल किया गया है। मामला जो इस समय तजाद पैदा हो गया। पुलिस ने बच्ची का पोस्टमार्टम भी कंप्लीट करवा लिया। पोस्टमार्टम होने के बाद पता लगेगा कि बच्ची ने खुदकुशी की है या इसको कत्ल किया गया। बच्ची के जिस्म का तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि इस वक्त जो लवाकिन है वो बच्ची की लाश को दफनाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बच्ची की लाश को गुलरेज कार चौक पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया है कि हमारे मुकदमा दर्ज करके जिम्मेदारान को सजा दी जाए। चूंकि ये इस वक्त कई ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जिसमें घरेलू मुलाजमीन के ऊपर या तशद्दुद किया जाता है या तो फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये छोटी उम्र की बच्ची थी और इसको काम करने के लिए ननकाना साहब से लाया गया था और ये तकरीबन इनके पास गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रही थी। आज जब ये वाक़या पेश है तो जिस घर में काम करती थी उसके मालकान का ये कहना है कि बच्ची की जो लाश है सुबह जब आए हैं तो कमरे में लटकी हुई थी। और लवाकिन का ये कहना है कि बच्ची जो है वो इस किस्म की खुदकुशी की हरकत नहीं कर सकती, इसको मारा गया है या इसके पीछे किसी न किसी किस्म की कोई राज है जो पुलिस की तफ्तीश कर लवाकिन को गिरफ्तार करे। इफ्तिखार अली, ये बताइएगा कि पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में कोई बयान दिया है अभी तक या नहीं? जी, पुलिस का ये कहना है कि जिस जगह पर बच्ची ने खुदकुशी की है उस कमरे को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, उसकी जियो फॉरेंसिक भी करवाई जाएगी। और दूसरी तरफ जो जिस घर में ये वाकया पेश आया है उस घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि घर के में रहने वाले तमाम लोग जो है उनकी नकलो हरकत को रोका जाए और पुलिस ने उनको पाबंद कर दिया है। लवाकिन के से तहरीरी दरख्वास्त देकर मुकदमा दर्ज करने की जो है ये तैयारियां शुरू कर दी गई। दूसरी जो ये वाकया है ये थाना लोईबेर के दूध में पेश आया है और पुलिस जो है वो लोईबेर पुलिस जो है इसके ऊपर कार्रवाई कर। इफ्तिखार, ये बच्ची कब से यहाँ पर काम कर रही थी और क्या इससे पहले कभी कोई क्या तशद्दुद का कोई वाकया पेश आया हो या बच्ची ने इस तरह की कोई अपने वालिदैन से शिकायत की हो? इस बारे में आपकी बात हुई किसी से? जी, बच्ची तकरीबन 1 साल से यहाँ पर काम कर रही थी और इससे पहले इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ था। लेकिन वालिदैन का ये कहना है कि बच्ची जो है वो काफी दिनों से परेशान थी।
کیونکہ بچی کی والدہ سے رابطہ ہوا ہے. بچی کا والد جو ہے وہ وفات پا چکا ہے. بچی کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ بچی کافی زیادہ پریشان تھی اور بچی کو ہم نے عید کے اوپر ملنے کے لیے بلایا بھی تھا لیکن اس کو چھٹی نہ دی گئی. اب ہمیں اچانک پتہ لگا کہ آپ کی بچی نے خودکشی کر لیا. جب ہم موقع پر پہنچے تو پتہ لگا کہ بچی کے اوپر تشدد بھی کیا گیا, اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں اور دوسرے ڈاکٹروں نے بھی یہ چیز ظاہر کی ہے کہ بچی کے جسم کے تشدد کے نشانات پائے گئے. جی ٹھیک ہے. بیورو چیف راولپنڈی افتخار علی بھٹی ہمیں افسوسناک واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان ریسلنگ کے چیئرمین محمد ندیم پہلوان سے مسلم لیگ نون اقلیتی امور کے کوآرڈینیٹر سہیل جاوید کھوکھر کی قیادت میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ٹوئنکل سہیل, سبیل سہیل, ویرونیکا سہیل اور وسیم حسن ایوان نے ملاقات کی. ملاقات میں کھیلوں کے فروغ, کھلاڑیوں کی سہولیات اور ان کی مالی معاونت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. محمد ندیم پہلوان نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی سرپرستی کے حوالے سے تجاویز کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے جسے جلد حکومت اور متعلقہ وزارت تک پہنچایا جائے گا. ہمیں امید ہے حکومت نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے ہماری تجاویز پر عملی پیش رفت کرے گی. پاکستان کے کھلاڑیوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے. اگر حکومت ان کی سرپرستی کرے تو یہی کھلاڑی دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. وفد نے کھیلوں کے فروغ کے لیے کاوشوں پر ندیم پہلوان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. میرا نام رانیکا سہیل ہے. میں انٹرنیشنل ویٹ لفٹر پاور لفٹر ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوں. بی ایس آنرز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ریسنٹلی میں ہانگ کانگ جا رہی ہوں یونیورسٹی گیمس کھیلنے کے لیے. میرا نام ٹوئنکل سہیل اور میں ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوں 2015 کی, 2017 کی اور 2018 کی اور 3 ٹائمس ہیٹرک کی ہے. اور میرا اپنا ویٹ 72 kg ہے. میں نے 370 kg ویٹ اٹھایا اور آج میں سر سے مل کے بےحد خوشی ہوئی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقی اور کامیابی سے نوازے. میرا نام سیبت سہیل ہے اور میں انٹرنیشنل پاور لفٹر ہوں, گولڈ میڈلسٹ ہوں اور خدا کا شکر ہے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں ہم لوگ. اور پیڈو پاکستان نے یہ لقب سے بھی نوازا ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں یہاں آ کر اور سر سے مل کر. خدا ان کے اور زیادہ ان کو بلیس کرے اور ان کے ہاتھوں سے اور زیادہ کام کرے. تھینک یو سو مچ. جی میرا نام سہیل کھوکھر ہے اور میرے بڑے پیارے محسن میرے دوست چیئرمین ریسلنگ فیڈریشن پہلوانوں کے چیئرمین خودی پہلوان اور حافظ عزیز جناب ندیم صاحب کے پاس آج ہم آئے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. چونکہ یہ اسپورٹس لور ہیں, کوچ ہیں, استاد ہیں, تو یہ سب کو پیار دیتے ہیں لیکن کھلاڑیوں کو زیادہ مان دیتے ہیں. تو بڑا اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے اور خدا تعالیٰ انہیں اور صحت ایمان اور ترقیوں سے نوازے. پاکستان زندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ آئے, مجھے بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سپورٹس مین ایک ہی فیملی ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ایک فیملی کی طرح چلیں گے. تھینک یو ویری مچ. صوبائی وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی کی زیر صدارت تعلیمی بورڈ کے سربراہوں کا اہم اجلاس ہوا. میٹرک امتحانات پر اہم فیصلے کیے گئے. حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے چترال میں 18, 19 اور 20 اپریل کو ہونے والے پرچے منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. کینسل ہونے والے پیپرز نئے شیڈول کے مطابق بعد میں لیے جائیں گے. وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی کہتے ہیں صوبے کے باقی اضلاع میں بارشوں اور سیلاب کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی بھرپور معاونت حاصل ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ صوبائی وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی کی زیر صدارت تعلیمی بورڈ کے سربراہوں کا اہم اجلاس. میٹرک امتحانات بارے اہم فیصلے کیے گئے. حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے چترال میں 18, 19 اور 20 اپریل کو ہونے والے پرچے منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. کینسل ہونے والے پیپرز نئے شیڈول کے مطابق بعد میں لیے جائیں گے. وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی کہتے ہیں صوبے کے باقی اضلاع میں بارشوں اور سیلاب کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی بھرپور معاونت حاصل ہے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی کی زیر صدارت تعلیمی بورڈ کے سربراہوں کا اہم اجلاس ہوا. میٹرک امتحانات بارے اہم فیصلے کیے گئے. حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے چترال میں 18, 19 اور 20 اپریل کو ہونے والے پرچے منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. کینسل ہونے والے پیپرز نئے شیڈول کے مطابق بعد میں لیے جائیں گے. وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی کہتے ہیں صوبے کے باقی اضلاع میں بارشوں اور
सैलाब का कोई मसला नहीं, हमें ज़िले इंतजामिया और पुलिस की भरपूर मुआवनत हासिल है। मैट्रिक के इम्तहानात के बारे अहम फैसले से मुताल्लिक खबर है। हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से चित्राल में 18, 19 और 20 अप्रैल को होने वाले पर्चे मंसूख करने का ऐलान किया गया है। कैंसिल होने वाले पेपर्स नए शेड्यूल के मुताबिक बाद में लिए जाएंगे, जबकि तारीखों का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इश्तियाक नूर चमकनी से। जी इश्तियाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी सूबाई वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा फैसल खान तरकी के ज़रिए सदर तालीमी बोर्ड सरबराहान का इजलास मैट्रिक इम्तहानात के बारे में हुआ, जिसमें सूबाई वजीर तालीम फैसल खान तरकी ने कहा कि हालिया बारिश और सैलाब की वजह से पेशावर बोर्ड के ज़रिए इंतजाम अजला चित्राल से 18, 19 और 20 अप्रैल को होने वाले पेपर कैंसिल कर रहे ताकि तलबा को पेपर देने में दुश्वारी पेश न आए। उन्होंने कहा कि कैंसिल होने वाले पेपर नए शेड्यूल के मुताबिक बाद में लिए जाएंगे और इसके लिए नए तारीख का ऐलान और शेड्यूल जारी किया जाएगा, जबकि सुबह के बाकी अजला में बारिशों और सैलाब का कोई मसला नहीं और वहाँ इम्तहानात पहले से जारी शुदा शेड्यूल और वक्त पर होंगे। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने तालीमी बोर्ड के सरबराहान इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में सेक्रेटरी एजुकेशन मसूद अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद खान, डायरेक्टर IT और तमाम तालीमी बोर्ड सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में तालीम बोर्ड सरबराहान ने सूबाई वजीर को अपने बोर्ड के इम्तहानात तैयारियों के लिए गए इकदाम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि तमाम बोर्ड इम्तहानी अमल की ड्यूटी पर वक्त लगाए हैं और पेपर भी मुतहद बैंकों तक पहुँचाएंगे, जो कि बाद में सेंटर तक पहुँचाए जाएंगे। इस तरह इम्तहानात के लिए सिक्योरिटी और दीगर तमाम इंतजाम भी मुकम्मल किए गए। जी शुक्रिया इश्तियाक नूर चमकनी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की कॉल पर रावलपिंडी में चिकन शॉप्स बंद। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि पोल्ट्री रिटेलर का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, महंगा चिकन खरीद कर सस्ता कैसे बेचें। रावलपिंडी के 2500 चिकन रिटेलर्स हड़ताल पर हैं। इंतजामिया हकायक के मुनाफी रेट लिस्टें जारी करने का सिलसिला बंद करे। इंतजामिया ने रवैया न बदला तो एहतजाज मजीद बढ़ेगा। SSP हेडक्वार्टर सैयद गजनफर अली शाह का ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की सेहत के हवाले से अहसन इकदाम। मुलाजमीन के मुकम्मल बहाली और सेहत के हवाले से कैंप लगवा दिया। तमाम मुलाजमीन को हेपेटाइटिस B के हवाले से 3rd डोज लगाई गई। सैयद गजनफर अली शाह का कहना था कि कैंप का मकसद मुलाजमीन की हेल्थ का ख्याल रखना है। सेहत कैंप के जरिए हेपेटाइटिस B जैसी मूजी बीमारी का खात्मा किया जा सकता है। तमाम मुलाजमीन को हेपेटाइटिस B के इंजेक्शन लगाएंगे। ट्रैफिक मुलाजमीन जिस गिर्द आलूद माहौल में ड्यूटी करते हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। अच्छी सेहत खुदा की नेमत है और मुलाजमीन की सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और नाजरीन, कोहिनूर न्यूज की खबर पर UAT इंतजामिया में खलबली मच गई। गंदम की रातों रात कटाई शुरू कर दी। फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। गंदम और सरसों की गैर कानूनी काश्तकारी के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। वाकई की साफ और शफाफ इंक्वायरी की बजाय मुलाजमीन को डराया जाने लगा। डॉक्टर तनवीर इकबाल के फ्रंटमैन अली रजा और उसके मातहत अमले की बदउनवानी जाहिर करने पर कैंपस को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शाहिद ने ठेकेदारों के साथ मिलकर रातों रात फसल काट ली। तखमीने के मुताबिक UAT को 1 करोड़ रुपए का चूना लगाकर जेबें भर ली गई हैं। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक मरीजों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर करने के लिए दिन रात कोशा है। सर गंगा राम अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में AC सिस्टम को फंक्शनल कर दिया गया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मरीजों को 24 घंटे AC की सहूलत मुयस्सर होगी। इस मौके पर MS प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोइनुद्दीन का कहना था कि मरीजों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर करने के लिए तमाम तर वसाइल को बरकार लाया जाएगा।
اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار.